So I'll quickly repeat it, है ना. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. So when charges flow through a solid or a liquid or in some gaseous medium, then we say that there is some electric current, है ना. वो करंट इलेक्ट्रिक करंट क्यों होता है? That is because of flow of charges. It is a scalar quantity. Current is a scalar quantity. Why? Because it may have magnitude direction both. दोनों होता है, उसमें magnitude भी direction भी होता है, but still it is not a vector quantity. Why it is not a vector quantity? Because it does not follow vector law of addition, and that is why it is called scalar quantity. So for a physical quantity to be a vector, it should follow three conditions. It should have magnitude, direction, and the most importantly one, it should have what? It should follow vector laws of addition. यहाँ पे क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट, देयरफॉर इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. देन इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर. आई टोल्ड यू ये एम्पियर होता है ना. तो इसको डिनोट करते हैं बाय कैपिटल आई. कई जगहों पे स्मॉल आई से भी करते हैं, फिलहाल हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करेंगे इसको. एंड फॉर्मूला फॉर दिस करंट इज Q by T, राइट, चार्ज अपॉन टाइम. सो फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी हैव formula for this current, charge upon time. Okay, now this about charge. Charge is what? It is intrinsic property of a substance that describes its electrostatic property. तो जो चार्ज होता है वो डिस्क्राइब करता है किसी बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी. लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना, लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्जेस, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हाट? दिस चार्जेस ओनली, बाय दिस प्रॉपर्टी ओनली. ठीक है. तो आई इज व्हाट? इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम. इन टर्म्स ऑफ यूनिट, एम्पियर इज गिवन एज कूलम पर सेकेंड. ओके, सो एम्पियर इज गिवन एज व्हाट? कूलम पर सेकेंड. I'll repeat it. See, charge on an electron is this much, 1.6 into 10 power minus 19. See, magnitude of charge on electron. एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 1.6 into 10 power minus 19. दिस माइनस स्टैंड्स फॉर द माइनस और निगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, उसके लिए माइनस है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज 1 एम्पियर? हाउ डू डिफाइन 1 एम्पियर? तो उसके लिए recall this formula. I is given as Q upon T. Put value of Q as 1 coulomb and value of time as 1 second. So 1 coulomb upon 1 second. So this will give you 1 ampere, है ना. ये हमने देखा था in the previous slide. So I is equal to 1 ampere. ऐसा कब हुआ? When 1 coulomb of charge was passing through a conductor in 1 second. So here is some conductor, say A, B, and let us consider this point P inside this conductor. If 1 coulomb of charge is passing through this point in 1 second, then we say that there is 1 ampere of current in this conductor. Okay, that is passing through this conductor. How do we define it? 1 ampere is that current which is obtained when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. बताओ किसका हो गया है? जिसका भी हो गया आंसर दो मुझे. See, so we had these questions. First was find number of electrons in 1 coulomb of charge. तो 1 coulomb of charge में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है नेगेटिव, राइट. 1.6 into 10 power minus 19 कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन में. तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो आप सिंपल जो आपने क्लास 4-5 में कर रखा है यूनिटरी मेथड, उस यूनिटरी मेथड से आप कर लेंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएगा? दिस 1 अपॉन 1.6 into 10 power minus 19. When you solve it, you will get this value 6.25 into 10 power 18 electrons. Question number 2 was find current through a conductor if 20 microcoulomb of charge passes through it in 0.02 millisecond. So current आपको निकालना है. I is given by this formula, मैंने बता दिया था. तो Q को आप लिखिए 20 माइक्रोकुलम है. 1 माइक्रो मीन्स 10 का पावर माइनस 6. सो 20 माइक्रो 20 into 10 का पावर माइनस 6 डिवाइड बाई टाइम. टाइम इज 0.02 मिली सेकेंड. सो 0.02 फॉर मिली वी आर यूजिंग 10 का पावर माइनस 3.
बिकॉज मिली इज 10⁻³ होता है मिली, है ना। जैसे किलोमीटर क्या होता है 10⁻+3, वैसे मिली क्या होता है 10⁻⁻3। सो व्हेन यू सॉल्व दिस वन, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करेंगे यू गेट 1 एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन वॉज फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू अ कंडक्टर if 5 एम्पियर ऑफ करंट passes थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड्स। तो कोई कंडक्टर है, उसके अलॉन्ग 5 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है फॉर हाउ मच टाइम, 10 सेकेंड्स के लिए। तो कुल कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। अगेन विल यूज सेम फार्मूला लाइक दिस वन, I is equal to Q upon T, but since charge is required, so time is given, I is given, charge is required, right? So Q is equal to क्या हो जाएगा I into T, put value of I 5 ampere here, value of time 10 second, and then multiply it, you will get 50 coulomb of charge, okay, that is transferred through the conductor in 5 seconds. Okay, so let me repeat it. How do we measure electric current? Electric current को measure कैसे करते हैं? Okay, so see, we do it with the help of a device which is called ammeter. Ammeter device होती है ना, उसकी मदद से करते हैं। So ammeter what? It is a device which is used to measure electric current. Electric current measure करने के लिए जो device हम यूज करते हैं that is called ammeter. एमीटर को हम लोग कैसे यूज करते हैं कि सर्किट में, सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम, इसमें बैटरी है, रेसिस्टर है, ऑल दिस कंपोनेंट्स विल स्टडी, ठीक है, अभी अगले लेक्चर्स में आएंगे वे सब, है ना। फिलहाल एमीटर कैसे इस्तेमाल किया गया उसको देखिए। जो रेड कलर में है दिस इज योर एमीटर एंड दिस इज एडेड इन सीरीज, इसको सीरीज बोलते हैं, एक के बाद एक लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो दिस एमीटर इज एडेड हियर, सो दिस इज हाउ वी एड an ammeter into a circuit, okay, and the resistance of this ammeter should be very very low. This is important to know. So the resistor or the resistance of the ammeter, it should be very low. Ideally it should be 0, लेकिन 0 possible नहीं है, so it should be very very low. So see, why the electric current flows in a conductor. एक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है ना वो, और इन अदर वर्ड्स वाई चार्जेस फ्लो। करंट फ्लो करना मतलब क्या है, चार्जेस का फ्लो करना। तो चार्जेस ही फ्लो क्यों करते हैं, तो विल सी सम एनालॉजी फर्स्ट, ठीक है। पहले बात करते हैं एयर करंट की। एयर करंट भी होता है, वाटर करंट भी होता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एयर करंट, वाई एयर फ्लोज, तो फ्लो ऑफ एयर अकर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर एट 2 प्लेसेस। मान लीजिए प्लेस 1 है जहाँ पे हाई एयर प्रेशर है, और ये प्लेस 2 है जहाँ पे लो एयर प्रेशर है। एयर हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टुवर्ड्स लो एयर प्रेशर, ठीक है। तो एयर हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। किसका माइक है, कीप योर माइक ऑफ। सचिन यादव कीप योर माइक ऑफ। ओके, लाइकवाइज फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंस। यदि हाइट डिफरेंस है 2 प्लेसेस का, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर हाइट, द प्लेस एट हायर हाइट टू द प्लेस एट लोअर हाइट, ठीक है। पानी का फ्लो जो रिवर्स बहती हैं वो हिमालय से सी की तरफ आती है, क्योंकि हिमालयाज आर एट हायर अल्टीट्यूड्स कंपेयर टू सी। सो लाइकवाइज फ्लो ऑफ हीट, हीट कहाँ से फ्लो करता है, यदि कोई स्फेयर है, कोई बॉल है विच इज़ हॉट से एट 80 डिग्री सेल्सियस, और आपका एटमॉस्फेयर है जो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, सो हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस बॉल टू द एटमॉस्फेयर। सो दिस फ्लो ऑफ हीट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो एनी काइंड ऑफ फ्लो हैपन्स बिकॉज ऑफ सम ग्रेडियंट। कहीं कोई स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है, तो उसकी वजह से ही क्या होता है कि चीज़ें फ्लो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लो ऑफ एयर इज ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, flow of water is due to altitude gradient or height gradient, and flow of heat is due to temperature gradient. So see, the region for flow of electron. So we have seen in the analogy why wind flows, why heat flows, why water flows now. So likewise why current flows, उसका भी रीजन होना चाहिए। So that is because of difference of concentration of electrons. So if suppose this is a conductor AB, and we are joining
the two ends A and B of this conductor with a cell. The positive terminal is joined to end A and negative terminal is joined to end B of this conductor. So at end B you will have larger concentration of negative charges, that is electrons, compared to end A. Electrons यहाँ पे ज़्यादा होंगे, they will start flowing from B to A. So this forms a current, this constitutes a current. This current is called electronic current. तो B से A की तरफ इलेक्ट्रॉन्स बहना चालू करेंगे क्योंकि एंड B आपका नेगेटिव हो गया है, एंड A आपका पॉजिटिव हो गया है, एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट. ओके, नाउ कन्वेंशनल करंट, ये क्या होता है, ये अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है ना. तो दिस विल फ्लो फ्रॉम A टू B. कन्वेंशनली हम ऐसा मान के चलते हैं, और द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्जेस विल फ्लो. बट normally when we talk of flow of current, we talk in terms of current of the flow of electrons. तो इलेक्ट्रॉन्स B से एक तरफ फ्लो कर रहे हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉनिक करंट. तो जो आपका कन्वेंशनल करंट होगा वो आपका A से B की तरफ होगा, ठीक है, विच इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज हाउ, दिस इज अ रीजन वाई कन्वेंशनल करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, एंड दैट इज बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ ग्रेडियंट. वो ग्रेडियंट कैसे क्रिएट किया है हमने, बाय यूजिंग अ सेल. एक सेल यूज करके वी हैव गॉट द टू एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस इन टर्म्स ऑफ चार्जेस. तो हमने एक एंड को डिफरेंट पोटेंशियल पे, दूसरे को डिफरेंट पोटेंशियल पे कर दिया, ठीक है, एंड दिस डिफरेंस इन पोटेंशियल इज क्रिएटेड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस सेल. चलो भाई पूछो, अभी नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो. यस सर, एक बार फिर से बता दीजिए. देखो ये ए बी आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये ए बी दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है सर. हाँ, ये देखो ये वाला. यस सर. अरे यार ये क्या हुआ, हाँ? ये क्या हुआ, ये कहाँ गया, ओपन बोर्ड कहाँ गया, कुछ यहाँ पे ऐसे क्लिक हुआ है, कुछ क्या हो गया बता. वेबसाइट पर ये वाला, इस पे क्लिक करना, ये वाला, ठीक है. चलो देखो अब ब्लिंक बहुत ज़्यादा कर रहा है. लुक एट दिस कंडक्टर, ये कंडक्टर ए बी है, इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया, ठीक है. तो सेल का ये पॉजिटिव, आपने सेल देखा होगा ना, ऐसा सेल आपने देखा होगा, आपके टीवी का जो रिमोट होगा उसमें ऐसा सेल रहेगा. तो ये एंड पॉजिटिव होता है ना, ये एंड नेगेटिव होता है, देखना जरा उस पर. तो जो पॉजिटिव एंड है उसको हमने जोड़ दिया, एक कंडक्टर लिया हम लोगों ने कोई, ठीक है, एक तार लिया हमने, इस तार का एक एंड जोड़ दिया पॉजिटिव से, एक एंड जोड़ दिया नेगेटिव से, ठीक है, वैसा यहाँ पे कुछ कर रखा है. तो क्या होगा, इस एंड पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव एंड है. तो जो सेल आपका है इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है ना, वो तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे. आपने पढ़ा होगा ना सेल के बारे में, कैथोड होता है, एनोड होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है. किसी क्लास में, जूनियर क्लास में भी है, 7वीं 8वीं में भी है, ये सब है ना. तो क्या होगा, तो हमें इससे मतलब नहीं है ज़्यादा, बस ये सेल को समझो. ये सेल है, इसका एक एंड पॉजिटिव है, एक एंड नेगेटिव है. जो पॉजिटिव एंड है वह जो ए है आपका एंड इस कंडक्टर का, उसको पॉजिटिव कर देगा, और जो नेगेटिव एंड है इस सेल का वो बी एंड को नेगेटिव कर देगा. नाउ से अब मैं इस कंडक्टर को यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ. तो जो बी एंड है वो नेगेटिव हो गया है, ए एंड है पॉजिटिव हो गया है. नेगेटिव होना मतलब यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का होना. तो बी एंड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इधर मूव करेंगे, ठीक है. और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट. इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट. और जो करंट होता है जिससे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, ये हमेशा फ्लो करता है इलेक्ट्रॉनिक करंट के उल्टा. यदि इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट आपका इधर फ्लो करेगा, ठीक है. तो यही मैंने बताया यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है. इतना बताया है मैंने केवल, और करंट क्यों बह रहा है उसका रीजन बताया है मैंने. क्लियर है, बताओ. यस सर. ये जो दोनों एंड हैं, ये जो आपका सेल है
ये दो पोटेंशियल है ना, इन दोनों एंड्स को डिफरेंट पोटेंशियल पे, ठीक है, इनको डिफरेंट पोटेंशियल दे रहा है। एक टर्म यहाँ पे मैंने यूज किया पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। तो ये जो सेल होता है ये क्या करता है, वो कंडक्टर को डिफरेंट पोटेंशियल्स पे रख देता है, ठीक है। एक ग्रेडियंट देता है, पोटेंशियल का ग्रेडियंट देता है ना, पोटेंशियल का ग्रेडियंट देता है, ठीक है। और उसकी वजह से ही करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो मैंने क्या बताया कि ये करंट, ये आपका ये आपका कंडक्टर है और ये पॉजिटिव एंड हो गया, नेगेटिव एंड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर फ्लो कर रहे हैं, तो करंट आपका इधर फ्लो करेगा, ये आपका करंट होगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। फिर से लिख लो इसको, ये आपका आई हो गया। तो ये क्या है आपका, दिस इज कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट आई, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है आपका, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन की वजह से है इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये जो एंड्स हैं आपके, ठीक है, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव एंड। और ऐसा क्यों हुआ है, दिस इज बिकॉज तो ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। सिंपल सर्किट डायग्राम्स में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से, है ना। तो ये करंट आपका यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, जो ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। ये आपका करंट आई है, ये आपका करंट आई है जो अंदर जा रहा है, ठीक है। तो मैं डायग्राम से दिखा रहा हूँ आपको। आप चाहें तो यहाँ पे एक एमीटर भी ऐड कर सकते हैं कहीं पे। ये मान लीजिए आपका एमीटर है यहाँ पे, ठीक है, एक एमीटर है प्लस माइनस, ये भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, चाहो तो। एक बार फिर से देख लो क्या हो रहा है इसमें। ये आपका एक सर्किट है, ये आपका सेल है मान लो, ठीक है, एक सेल है। तो इसमें दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले ने इस एंड को, ये मान लीजिए आपका एंड ए है, इस एंड ए को पॉजिटिव कर दिया और एंड बी को नेगेटिव कर दिया, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल ने इसको नेगेटिव कर दिया यहाँ पे एंड बी को। ये नेगेटिव टर्मिनल था आपका और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाले ने ए को पॉजिटिव किया, नेगेटिव वाले ने बी को नेगेटिव किया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे बी से ए की तरफ, देयरफॉर एंड दैट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो करंट अपोजिट फ्लो करेगा उसके, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। एंड वाई दिस हैज हैपेंड, ये जो कंडक्टर था पहले जो ऐसे ही पड़ा हुआ था, जो पहले चुपचाप यूँ ही पड़ा हुआ था, उसमें कोई भी करंट नहीं था, ठीक है। अभी इसमें करंट आ गया है। वाई, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस सेल। इस सेल ने क्या किया है, इट हैज़ क्रिएटेड, सो द सेल हैज क्रिएटेड a potential difference across conductor. That is why current flows through it. तो आपको ये जानना है ना। इसको बना सकते हैं आप, यहाँ पे है नो करंट। तो देखो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये आपका कंडक्टर था ए बी, इसमें कोई करंट नहीं है, नंबर 1 पॉइंट ख़त्म हो गया।
नंबर 2 पॉइंट, ये कंडक्टर था, सेम कंडक्टर, यही वाला कंडक्टर है, इसमें हमने एक सेल से अटैच कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को एंड ए से, नेगेटिव टर्मिनल को एंड बी से, एंड ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड एट एंड बी. इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे टूवर्ड्स एंड ए, जिनकी वजह से एक और करंट फ्लो करेगा विच इज कॉल्ड कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. एंड दिस ऑल हैज अकर्ड बिकॉज ऑफ potential difference that is created at point A and B.